गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए जल्दी से सब बच्चे गुड वीडियोस ऑन मॉर्निंग करिए सर। अपने। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, वीडियोस ऑन करिए। ओके, आइए जल्दी हम अपना आज लास्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जिसने ये किया है, जिस भाई बच्चे ने ये किया है चैप्टर, आपने रियलाइज किया होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में से आ रहे हैं और फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में से आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिस जिस टॉपिक में से आ रहे हैं जल्दी से लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। Questions on identification of organizational structure, ब्रैकेट में लिखिए फंक्शनल और डिविजनल। क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखिए फंक्शनल और डिविजनल। सेकंड लिखिए questions on the identification of the concept of delegation and decentralization। बहुत क्वेश्चन आए हुए इसके ऊपर, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट लिखिए questions on identification of steps of organizing and lastly लिखिए questions on identification of concept of identification of the concept of centralization and decentralization। concept of centralization and decentralization। चलो अब आइए शुरू करते हैं। यही चार क्वेश्चंस है, तरीके के क्वेश्चंस है जो बार बार आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। voltage fluctuations have been common and quite high in India. The electrical appliances like television and refrigerators and air conditioners often leaving them in a permanently damaged condition. Enguard company decided to manufacture stabilizers for North India where the voltage fluctuation, है ना, थोड़ी spelling mistake ज़्यादा हो गई इसमें, ranges from 220 volt to 230 volt. Once the demand for North India was taken care of, they decided to launch stabilizers varying between 90 to 260 for meeting the voltage requirement of other regions of India also. The engineers were appointed for South, West, East region of India as the voltage was different in all the different areas. Through all the engineers were appointed to manufacture stabilizers, but the product differed from region to region. Okay, underline करिए इस लाइन को, लास्ट लाइन को underline करिए। Through all the engineers were appointed to manufacture stabilizers, but the product differed from region to region. Identify the organizational structure of Enguard company। तो बताइए क्या होना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंक्शनल या डिविजनल? तो बताइए, सब कौन बताएगा? फंक्शनल होना चाहिए कि डिविजनल होना चाहिए? ड्रोन, क्रिश, वीडियोस ऑन करिए, सहज, राघव बताइए। एक बात बताइए, कंपनी बना के रही है स्टेबलाइजर्स सबके लिए? हाँ, बस ये है किसी किसी स्टेट के लिए 90 वोल्ट का बना रही है, किसी स्टेट के लिए 100 वोल्ट का बना रही है, किसी के लिए 120 वोल्ट का बना रही है। तो मुझे ये बताइए कि रॉ मटेरियल सेम होएंगे कि अलग अलग होएंगे? सेम होएंगे। तो स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए? फंक्शनल। हाँ जी, ड्रोन कुछ कह रहे थे आप? सर आंसर बोल दो। हाँ नहीं, आंसर तो सुन लिया, वीडियोस ऑन करो। State any two advantage and two disadvantage of this structure। तो डायरेक्ट है, एडवांटेज हो सकती है स्पेशलाइजेशन, बेटर कंट्रोल, डिसएडवांटेज हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो भी कोई भी, हम इसमें नहीं जा रहे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस का हम नहीं करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन वाले ज्यादा उस पर टाइम देंगे। कविता घाई was the managing director of a restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen। The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of work, बिल्कुल बेकार की लाइन है, चलो मैं पढ़ देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it all by herself. Moreover, her objective magnitude of work made it impractical. ये same line हो गई। Her objective is to open more branches of this restaurant in different places. She appointed Nikhil Gupta as a general manager of Healthy Kitchen Lucknow and gave him the right
अंडरलाइन करिए, राइट टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक डिसीजंस, अंडरलाइन करिए इस लाइन को, विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। इस लाइन से हिंट मिल रहा है, ये अथॉरिटी की साइड पे हमारे को रिलेट करे। अगर आप याद करो अथॉरिटी की जो डेफिनेशन थी डेलीगेशन में, वो इसी चीज के बारे में थी, यही लाइन थी। जागृत ध्यान दे दे थोड़ा सा पढ़ाई पे, बाल बढ़िया बढ़िया सेट हुए हुए, ठीक है। हाँ ओके, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ हिज बिजनेस शी आल्सो गिव हिम द अथॉरिटी टू हायर एंड द स्टाफ एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। कविता घाई was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to open branches of the restaurant in Agra and Kanpur also, ठीक है। इसकी वजह से उसके काम से तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोड बाय कविता घाई। बताइए क्या होना चाहिए इसका? डेलीगेशन। Delegation. होना चाहिए सर। हाँ डेलीगेशन। अब किसने निशित ने किसने बोला? हाँ जी निशित ने सर। बोला। हाँ जी। आपने क्या बोला? आपके हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन है? यस सर। तो सर डिसेंट्रलाइजेशन पहले आप बताओ क्यों है, फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। पहले आप क्योंकि बताओ सर जैसे आपको क्यों आपने भी लगा? लाइन बताई सर कि इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क शी गिवन द राइट टू टेक डिसीजंस एंड सो तो सर डिसीजन है, एक सर बात द बताओ, डिसीजन decision मेकिंग making पावर। का तो राइट नहीं, एक बात, हाँ ठीक है, देखिए एक बात बताओ, जब आप डेलीगेट करते हो, मान लो मैंने अपना काम आपको दिया, तो उस काम को पहले वो काम मैं कर रहा था, फिर मेरे को लगा कि मेरे पर बहुत बर्डन आ गया, तो मैंने काम आपको दे दिया, और मैं अब आप उस काम को करोगे तो उस काम के लिए आपको डिसीजन मेकिंग की पावर तो मैं दूंगा, अथॉरिटी तो मैं दूंगा। हाँ अब जी सर। इसमें क्या है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि वो बहुत मतलब उसने बहुत लोगों को दिया। पहली बात तो इसमें एक हिंट तो मिला कि सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, कि मेरा काम था, मुझसे नहीं हुआ, मैंने अपने नीचे निशित को दे दिया, सॉरी निशित को कह रहा हूँ, निखिल को दे दिया। एक तो ये हिंट है। हाँ जी दूसरा सर। हिंट इसमें बात हो रही है अथॉरिटी की, लाइन भी लिखी है डेलीगेशन वाली, दूसरा हिंट वो है। और तीसरा हिंट ये है, आप समझना, मैंने आपने मेरे से क्लासेस अटेंड नहीं की थी, उसमें मैंने आपको बताया था मेजर डिफरेंस क्या है। डेलीगेशन तब तक मानी जाएगी जब चाहे वो एक जना हो, चाहे नीचे 10 लोगों को काम दे दिया हो। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि निशित को वो की डेवलपमेंट चाहती थी, वो सॉरी निखिल की डेवलपमेंट चाहती थी, वो चाहती थी कि निखिल भी सीखे। इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है, इसमें बार बार इंडिकेशन है कि ये जो कविता लेडी है, इससे खुद काम नहीं संभला और इसने अपना काम कम करने के लिए निखिल को काम दे दिया। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उस पर एक जगह लिखा हुआ है कि फॉर देयर डेवलपमेंट, मतलब उनकी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करके उनको सारे डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी। अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है तो डिसेंट्रलाइजेशन हुए। और बच्चे भी सुन लो, आप सबका आंसर ठीक है, बट आपको समझ आना चाहिए, अगर कहीं ये मेंशन होता, कोई इंडिकेशन भी होती छोटी सी कि कविता घाई वाज वेरी मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो थी, कॉन्फिडेंट थी, वो सही डिसीजन लेगा, और वो पता था उसको कि वो बहुत अच्छा डिसीजन लेगा, इसलिए उसने उसको दिया, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन जहां एक जने की बात हो रही है, वहां डेलीगेशन। आगे बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। इसका आंसर डेलीगेशन। इसको इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए, जिसको पहली बारी में क्लिक नहीं हुआ वो बच्चा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क। और आपको इस पर इंपॉर्टेंस बनानी थी, कोई भी दो इंपॉर्टेंस बनानी थी, नॉट रिलेटेड टू द केस। नेक्स्ट, आराधना एंड गंधर्व आर हेड्स ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन Yumko Limited. They are efficient managers and are able to motivate the employees of their respective department to improve performance. However, their drive to excel in their own sphere of activity instead of giving emphasis on objective of the enterprise had hindered the interaction between the departments that Aradhana and Gandharv are heading. One of them, there are interdepartmental conflicts and they have become incompatible. This has proved to be harmful in the fulfillment of the organizational objective. The situation has deteriorated to such an extent that CEO of Yumka had hired a consultant Rashmi to resolve the problem. अभी तक देखा जाए तो कुछ भी मतलब बहुत useful information नहीं है. After studying the situation closely, Rashmi found that the problem arises due to the अब line को mark करिए, inflexibility and narrow perspective on the part of both Aradhana and Gandharv. She is of the view that situation is a result of the type underline करिए organizational structure Yumko had adopted. क्या ये हिंट नहीं दे रहा? याद करिए, दो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, फंक्शनल डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक डिसएडवांटेज थी इनफ्लेक्सिबिलिटी, याद करिए, याद आया? तो ये तो साफ साफ हिंट मिल गया मुझे। तो ये क्या है? ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय यूमको एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर सो आइडेंटिफाई। तो हमारे को क्या है? फंक्शनल अडॉप्ट हुआ है और उसके एडवांटेज लिखनी है, एनी 3 जो भी आप लिख सकते हो। वो एसबीआई इज मनी लेंडर वाला जो था, एक्सीलेंट मनी लेंडर वाला, प्रोवाइडर वाला, उसकी कुछ भी। ठीक हो गया? समझ आ गया? तो हिंट मिला हमें कहां से? इस लाइन से। निश्चित समझ आ रहा है?
हाँ जी सर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन। देखो अभी तक 4 क्वेश्चन किए, 2 डेलीगेशन के ऊपर थे और 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर। वैसे मैं आप लोगों से जनरली पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब होता है ना कुछ आपकी स्कूल वाली टीचर्स तक कोई मैसेज आया हो, कुछ हो कि एग्जाम्स का क्या कुछ आपको पता हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन? सर अभी सर, स्कूल स्कूल की टीचर टीचरों तो ने कैंसिल। सर, एक मिनट, एक एक करके, पहले निश्चित आप कुछ कह रहे हो? हाँ सर हमारे स्कूल ने सेशन भी रखा था सर, तो टीचर्स भी बहुत कंफ्यूजन में थी, उन्हें भी कुछ नहीं हाँ, पता क्योंकि अभी। आज ही मैं न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंफ्यूजन है और वो कह रहे हैं कि जल्दी डिसीजन दो, लेकिन सीबीएसई बिल्कुल साइलेंट है। तो मेरे को लगा टीचर्स को कुछ पता हो। जागृत आपको कुछ पता है? आप कुछ कह रहे थे? सर ये सर मैंने एक टीचर से पूछा था, वो कहे थे 90% चांसेस है कैंसिल होंगे। नहीं, कैंसिल का तो यार इसमें लिखा है ना, देखो 10th के 12th के कैंसिल हो भी गए, मान लो लेटर रिसीव हो गए, तो यार तुम्हारी मार्किंग कैसे होगी? मतलब इस बार तो एक भी एग्जाम नहीं हुआ ना, तो मार्किंग, और इंटरनल भी ऑनलाइन हुए, तो मार्किंग सर कैसे? मुझे लगता है सर कि के उसी, बेसिस पे सर फॉर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, है ना, इंटरनल भी तो तुम्हारे ऑनलाइन ही हुए ना, तो उसकी भी क्या क्रेडिबिलिटी है? सर ठीक मुझे लगता है वो सिर्फ पास फेल के लिए है। इंटरनल कर देंगे और यूनिवर्सिटी एडमिशन वगैरह के लिए एंट्रेंस ले आएंगे। हाँ सर, हमें भी यही सर लग रहा है। डीयू के लिए एंट्रेंस कैंसिल आएगा। ही नहीं होंगे वैसे तो। मेरे को लग रहा है कैंसिल नहीं होएगा, ये पोस्टपोन हो जाएगी और एक महीना, क्योंकि अब जैसे सर सिचुएशन आज डिसीजन आ जाएगा। आज आ जाएगा। अच्छा, आज क्या तो प्रॉब्लम है है। सर, सर बोल रहे आज हैं सर, मीटिंग है बहुत अगर सारी ये चलो, रियायत मैं चल आपको रही ये एजुकेशन है। कह रहा हूँ मिनिस्टर कि की, अगर बट आपको पता नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो प्लीज वो जरा मुझे भी सेंड करना, अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। हम तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, हम अपना धीरे धीरे हफ्ते में एक दिन, या अगर जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती हफ्ते में एक दिन क्लास रख लिया करेंगे, जिससे आप लोग बिल्कुल टच से आउट ना हो जाओ। ओके, एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अमन चड्डा started Bullseye, a company for providing cyber security solutions to businesses. Its objective is to prevent, detect and respond cyber attacks. बिल्कुल बेकार की बात, हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर बेकार बेकार। पहला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा, आप लोगों को पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ रहा। He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. While working on the project, he found that the volume of work made it, underline करिए, impractical for him to handle all the work by himself. He decided to expand his team. The company maintained a close liaison मतलब होता है communication with a local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for the new project. I repeat, मैंने अभी आपको बोला एक बंदे की बात हो तो डेलीगेशन की ज्यादातर बात होती है, यहाँ पे 2 बंदों की बात हो रही है। पहले तो उसको मेंशन करिए और यहाँ लिखिए, एक बार मेंशन करिए 2 people। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों, अभी एक बार आप लिखो, अभी मैं डिस्कशन में बताऊंगा कि 2 people मैंने क्यों मेंशन कराया यहाँ पे। He found that the new employees were capable, enthusiastic, and trustworthy. Aman Chadda was thus able to focus objectives, and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. Not only this, Aman Chadda was able to extend, underline करिए इस line को, his area of operations, इस line को underline करिए। On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunities to develop their initiative. बच्चों पहले ना situation समझते हैं है क्या। एक बंदा है अमन चड्डा, जो इसने एक बुक ये बनाई है, साइबर सिक्योरिटी के देता है वो लोगों को, ठीक है। उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और वो खुद काम कर रहा था और उसको रियलाइज हुआ यार ये काम मैं खुद नहीं संभाल पाऊंगा। बात को समझना, ये काम मैं खुद नहीं संभाल पाऊंगा। तो उसने एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज जिससे उसके थोड़े कॉन्टैक्ट हुए, वहां गया, वहां से 2 बच्चों को ले आया। मैं कहता हूँ 2 छोड़ो 10 को ले आता है। हो क्या रहा है, मैं यहाँ ये अमन चड्डा है, उससे काम नहीं हुआ तो उसने अपना काम नीचे 5 लोगों को दे दिया, अपना काम नीचे 5 लोगों को दे दिया कि ये काम आप कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये तो आप मुझे बताओ, ये डेलीगेशन है? बस इतना ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये डेलीगेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन? मेरे को बताओ। डेलीगेशन। डेलीगेशन ही लग समझ रहा में आया? तो अब मेरी पॉइंट को समझिए, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, अभी जैसे आज बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम, आप समझना कि एम क्या है, मतलब किस वजह से वो लोगों को काम दे रहा है। यहाँ पे वजह है, मेरा काम था, मुझसे नहीं हो रहा, मैंने अपने से नीचे एक टीम बना के उनको दे दिया। ना तो वो उन लोगों की चाहता है कि वो कुछ सीखे, ना वो चाहता है कि, मतलब ऐसा कुछ उसकी इंटेंशन नहीं है कि बच्चे हैं आज काम करे कल को शायद छोड़ के भी चले जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझना है और उसको हिंदी में दिमाग में रीड करके उसका ये मतलब निकालना है कि काम नीचे वालों को क्यों दिया जा रहा है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगी, तो इसमें ये लाइन भी तो लिखी है कि ईशान और विंदा ने इनिशिएटिव लिया और दे गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो भैया अगर काम सीखोगे, नीचे वाला कोई बंदा काम सीखेगा, तो ये तो उसका एक कहते हैं ना वो कोलैटरल एडवांटेज है कि चलो उन्होंने काम सीख लिया, बट इंटेंशन नहीं थी किसी को सिखाने की। तो आपको ये समझना है कि पर्पस क्या है अपना काम किसी अथॉरिटी किसी और को देने की।
पर्पस सिर्फ अपना काम आसान करना है, उन बच्चों को डेवलप। मेरा ये इंटेंशन नहीं था। अगर ये क्वेश्चन होता कि अमन चड्डा है, वो अपनी कंपनी, वो एक कंपनी चलाते हैं और वो उन्होंने कुछ बच्चों को रिक्रूट किया इंजीनियरिंग कॉलेज से और उनको डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उनके पावर्स दे दी, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता। यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि अपना काम आसान करने के लिए उन्होंने पावर्स दी है, तो ये डेलीगेशन। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? अभी हम और 3-4 क्वेश्चन करेंगे, मैं रिलेट करूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका आंसर डेलीगेशन है। हाँ जी बेटा। सर कंफ्यूजन हो रही है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन देख, अभी देखो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन लग रहा था। हाँ जी सर। देखो किस लगा, क्यों लगा कि 2 लोग थे। यस सर। तो मैंने देखो क्या बोला, अब तूने, अब चल ठीक है, अब तू ये समझना पर्पस क्या था। मैं कह रहा हूँ नीचे 10 लोग हो, जैसे ऐसे करते, सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा करते, मेरा काम है पेपर्स चेक करना। जो नया साल बच्चे आए, अभी जो बच्चे नया साल शुरू हुआ, मेरे पास उनके पेपर्स आ गए। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को आप लोगों को भी पढ़ाना है, मुझे ग्रेजुएशन की क्लासेस भी लेनी है, मुझे घर में बर्तन भी साफ करने हैं, सफाई भी करनी है, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो ये काम मुझसे नहीं होएगा। तुम लोग तो अब मेरे पुराने हो, तो मैंने कहा जागृत आप आ जाओ, नंदिनी, उत्कर्ष, दिया, आप चारों को मैं कुछ पेपर सेंड करूंगा, आंसर की सेंड करूंगा, वो तुम कर देना मेरे चेक बच्चों के, और वहां पे मार्क्स लिख। ये मैंने आपको काम दिया 4 बच्चों को। तो जागृत एक बात था, क्या मैं तेरे को कोई फायदा मिलेगा इससे, या मेरे को बता तेरे को बड़ा कुछ लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलेगा, या तेरे को कुछ होएगा, या मैं चाहता था कि जागृत पेपर चेक करना सीख जाए, नंदिनी बीएसटी का, ऐसा कुछ तो नहीं था। ये तो मेरी इंटेंशन थी कि मेरे को अपना काम सीधा करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अपना उल्लू सीधा करना है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया, ठीक है, डोंट माइंड। तो ये था। अब जब तुमने पेपर चेक किया और मान लो सिया को एक्चुअली में आगे टीचिंग लाइन में जाना था, तो उसको एक बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिल गई, उसको थोड़ा समझ आ गया कि पेपर में कैसे चेक करने चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन, वो ठीक है उसने सीख लिया। लेकिन क्या इंटेंशन थी मेरी उसको सिखाने की? नहीं। तो अब एक बात बता, तेरे हिसाब से ये डेलीगेशन है, ये वाला एग्जांपल, या डिसेंट्रलाइजेशन? सर डेलीगेशन। बस तो यही तो ये चीज है कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मुझे लगा ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा कंप्लीट टाइम पे, तो मैंने 2 लोगों को बुला के काम करा दिया। ऐसे समझ ले, मेरे को किसी, मतलब भगवान करे ऐसा हो, मेरे को किसी यूनिवर्सिटी ने बोला या किसी स्कूल ने बोला कि आप हमारे स्कूल में आके गेस्ट प्रेजेंटेशन, गेस्ट लेक्चर बन जाओ, प्रेजेंटेशन दो बीएसटी में और टीचर्स को सिखाओ। ज्यादा हो गया थोड़ा, तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशंस बनानी शुरू की, तो मुझे लगा मैं टाइम पे नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने कुछ कंटेंट रफ में बना के जागृत तेरे को बोल दिया, या तू इनको प्रेजेंटेशन बना दे, पीपीटी बना दे, तो ये डेलीगेशन ही हुआ ना, ठीक है ना? तो डेलीगेशन, ठीक है, तो यही तो चीज है। ओके, अभी रुक जा। ऐसा करो बच्चों, ऐसा करो, आप ना लिखो, ऐसा करो, हम ना आज क्लास के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे लिख लो डेलीगेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ऐसे लिख लो, डी लिख लो बस, और क्वेश्चन नंबर 4 के आगे लिख लो डी। जितने भी क्वेश्चन है ना डेलीगेशन के, अभी हम सारे एक बार मार्क कर लेंगे, फिर लास्ट में 5 मिनट लगा के देखेंगे कि क्या डेलीगेशन क्यों है, मतलब किस क्वेश्चन में डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, हमें और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर्स पे आप मार्क कर ले, कहीं लिख लो, जिससे बाद में हमें ढूंढने ना पड़े, 2 और 4, ठीक है, और इंपॉर्टेंस आप बताई दोगे। अब आ जाओ 5th। ओके, रामदास, aged 49, is working in an aviation company. He is the senior most employee in his division. He is even senior to the division manager Kannaputti. Ramadas is considered one of the most committed, capable, and hardworking employee. As a result of his abilities and seniority, he generally received the work assignment of his choice. Although there was no formal designation of work, various special projects, he handled them as a matter of routine. A problem of developed when an able and intelligent person, Nagarjun, aged 33, was appointed by Kannapudi. अभी तक क्या है कि एक बंदा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो उसको अपने प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, वो औरों के भी काम कर लेता है, जबकि उसको कुछ कोई नहीं कह रहा करने को, बट वो ले लेता है काम। प्रॉब्लम आई कि एक और बंदा कन्नापुत्ती आ गया, जो कि अगेन एक हार्ड वर्किंग बंदा है, और उसके हिसाब से Nagarjun previously years experience in the close related made it possible to catch on the rhythm and वो ठीक है। On several occasions, Kannaputti noticed the tension developing between the two employees, Ramdas and Nagarjun, ठीक है। However, he didn't want to get involved in their personal issues as long the work was going on. One day, the tension between them reached to the boiling point, and Ramadas complained to Kannaputti, stating that his duties are taken care by Nagarjun. मतलब वो कह रहा है कि रामदास कह रहा है कि यार मेरा काम ये क्यों कर रहा है, तो एक बार ये उसने बोला। आगे चलते हैं। Kannaputti issued the order stating the, underline करिए, stating the clear allocation of the jobs and related duties between the two. He further clarified the working relationship between them by specifying those who has to report to whom. This helped in reducing the workload and enhancing productivity. तो अब आप मुझे बताइए
ये समझ के कि आप अपनी सोच से मेरे को बताइए कि कन्नापुत्ती पागल है, वो रामदास का काम क्यों कर रहा है? मेरे को ये पहले तो ये बताओ, कन्नापुत्ती रामदास का काम क्यों कर रहा है? कोई रीजन? सर उसे क्लैरिफाई नहीं है कि उसका काम क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जागृत ने बोला। कन्नापुत्ती को तो ये लग रहा है ना कि मेरे को काम आता है, मेरे पास टाइम है, मैं ये काम भी कर लेता हूँ, इसका क्रेडिट भी ले लेता हूँ, और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली है ही नहीं कि ये काम किसका है किसका नहीं है। तो अगर मैं हूँ कहीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा काम किसका है, और मेरे को सारा काम आता है, तो मैं सारा कर लूंगा ना, मुझे तो बोनस मिल जाएगा। तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि रामदास को लग रहा है मैं क्या करूँ ये काम। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का ठीक से परफॉर्म नहीं हुआ जिसकी वजह से ये Assignment of duty. Assigning of Assigning of duty. तो ड्यूटीज जो है कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किसका क्या काम है। तो पहला पार्ट हो गया आपका असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, आइडेंटिफाई द स्टेप व्हिच हैज नॉट बीन कैरिड आउट, बिल्कुल सही आपने बोला, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। एंड टू अदर स्टेप्स जो कि कन्नापुत्ती ने लिए। तो कन्नापुत्ती ने एक तो ड्यूटीज असाइन कर दी, पहला तो यही स्टेप लिया, और दूसरा क्या किया? Establishing reporting रिपोर्टिंग relationship. रिलेशनशिप की। उसने ये बोला कि हर बंदे को ये पता होगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा अपना काम पूरा करने के बाद। समझ में आ गया? ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोई भी लिख सकते थे आप इसमें, जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होएगा अगर ये हुआ, और फिर चेंजेस अडेप्ट कर पाओ, कुछ भी आपको जो भी लिखना है। कोई ऐसा कोई भी लाइन इधर कोई नहीं है, तो आप अपने आप ही लिखनी थी। आपको जनरली 6 में से जो भी आपको लिखनी थी वो लिखनी। ओके, अब आते हैं ऐसा बच्चों, एक काम करिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के आगे ना ओएस लिख लो। ओएस, दो टाइप के क्वेश्चंस को हम बाद में अगेन डिस्कस करेंगे, एक डेलीगेशन वाले, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आगे ओएस लिखो, थर्ड क्वेश्चन के आगे ओएस लिखो, ओएस मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और फिफ्थ क्वेश्चन अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन ओएस का है। तो हम इनको भी बाद में एक बार, आज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, हम एक बार इसको वापस करेंगे। ओके, किरण इंडस्ट्रीज, इसको वैसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करिए। इस कंपनी डीलिंग इन ऑफिस फर्नीचर, अंडरलाइन करिए ऑफिस फर्नीचर। द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई ऑपरेशंस टू इंप्रूव its growth potential and increase the market share. As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed amongst the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Sukhvinder, the managing director of the company, decided that they should add, underline career, home furnishings and interiors, a new line of business activity. Name the framework, underline career, which the diversified organization should adopt to enable it to cope. अभी एक मिनट बोलना मत, अभी बोलना मत। उत्कर्ष, आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, फंक्शनल या डिवीजन? सर डिविजनल। हाँ जी, डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए क्यों सर। होना चाहिए सर? सर क्योंकि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो रहा है। नहीं, आपने डिवीजन ठीक बोला, आपने आंसर जो लिखोगे वो भी ठीक है, लेकिन आपने आंसर मेरे को गलत बताया है। वो इसलिए क्योंकि आपको आइडेंटिफाई कैसे हुआ, पहले वो फर्नीचर बना रहे थे। फर्नीचर किससे बनता है? वुड से, स्टील से, एक्सेट्रा। अब वो आ रहे हैं होम फर्निशिंग्स में। फर्निशिंग्स कहा जाता है अपहोल्स्ट्री को, कर्टेन्स, कारपेट्स, एक्सेट्रा। तो ये दोनों चीजों की रॉ मटेरियल अलग है, इसलिए डिविजनल होना चाहिए। यस सर। तो इसका पूरा आंसर कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के मन में डाउट तो नहीं है ना? ओके, इसका आंसर लिखोगे दैट क्या है इसका क्वेश्चन की फ्रेमिंग, द कंपनी शुड गो विद डिविजनल स्ट्रक्चर as the raw materials of the products it intends to diversify into as the raw materials of the products it intends to diversify into are different as the raw materials of the products it intends to diversify into are different. ड्रोन लिख ले बेटा, लिख लो। उसके बाद आप लिखोगे, उसने बोला है गिव वन रीजन, उसके बाद आप आल्सो लिखोगे it will the company will obtain the following benefit from this decision. The company will obtain the following benefit from this decision. आप डिविजनल स्ट्रक्चर की कोई भी एक एडवांटेज दे सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा, कोई भी। तो आप अपना वो रॉ मटेरियल वाला पॉइंट लिखने के बाद आप अपना एक एडवांटेज लिखोगे। इसलिए मैंने उत्कर्ष को बोला
कि तेरा लिखने वाला आंसर ठीक था लेकिन बोलने वाला आंसर तेरा आइडेंटिफिकेशन वाला आंसर तेरा गलत। ठीक है, तो आप आंसर में एक एडवांटेज भी मेंशन करके आओ। और लिमिटेशंस, कोई भी आपको 2 लिमिटेशन डिविजनल की लिखी। अच्छा बच्चों, मैं एक मिनट, बहुत देर हो चुकी है, आधे घंटे से ज्यादा की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहा हूँ, आप खुद अपने वीडियोस ऑन कर लो या फिर मैं आपको निकाल दूंगा। ड्रोन, आद्या, सर राघव, सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर एक मिनट पहले मेरे को बोलने दो। आदित्य, आर्यन, कार्तिक, सहज, कृष, अनन्या, समृद्धि, क्योंकि इनके मेरे पास कोई मैसेज नहीं आए हैं वीडियो ऑफ के। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे थे आप? तो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, दूसरी डिवाइस है वो कर लो आप। जिनके मेरे पास मैसेज आए थे मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, जिनके नहीं आए आप वीडियोस ऑन करिए, वरना मैं अपना आप निकाल दूंगा विदाउट वॉच। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इसके सारे इस असाइनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये आपका जैसे 2015 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, उसके बाद शायद ये बोर्ड्स में भी आ चुका है। राजीव, the owner of Pathways Construction decided to start a campaign to create awareness amongst the people for developing clean surroundings in their area. He formed a team of 10 members to list the different ways for cleaning the surroundings. One suggested to take the help of local residents. Another suggested that they may involve school-going children in their venture. One more suggestion was to take the help of, ठीक है, ये सब suggestions आ रहे थे उनके पास, ठीक है। उसके बाद हाँ, on evaluation, इस line पे भी mark करिए, different ways it was decided to take the help of local residents to achieve the desired goal. Various activities are identified as this. After identification of different activities, the work was allocated to different members. Identify the concepts. पहले तो आप बोल्ड कर, मतलब हाईलाइट कर लो concepts। इसका मतलब सिंगल तो नहीं होएंगे, मिनिमम 2 तो है। Of management involved in this situation by helping in quoting the lines. तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो वर्ड कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको जब पहले चैप्टर का हमने केस स्टडी शुरू की थी नेचर, तब भी मैंने बोला था ये जो वर्ड कॉन्सेप्ट है इसका कोई दीन और ईमान नहीं। वो कहते हैं ना, इसका कोई दीन ईमान नहीं है, ये कभी कुछ भी बन जाता है। ये कभी कॉन्सेप्ट बन जाता है, कभी ये प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स बन जाता है, कभी ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है, कभी ये कुछ। तो अब कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत होना कि सर कॉन्सेप्ट का मतलब तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ही हो सकता है, नॉट एट ऑल। कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को बताइए आपको क्या लग रहा है इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या? प्लानिंग, वेरी गुड। और ऑर्गेनाइजिंग, मैंने बोला है Planning and एक से तो ज्यादा organizing. है, एक से तो ज्यादा है, बताइए। और सर ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग, तो ड्रोन प्लानिंग किस लाइन से लग रहा है? तो ये वाली लाइन है ना, वन सजेस्टेड टू टेक हेल्प। उन्होंने अलग अलग सजेशंस दिए, और एंड इवैल्यूएशन वाली लाइन, तो वो प्लानिंग वाला पैराग्राफ हो गया। और ऑर्गेनाइजिंग वाला ये वाला परचेज ऑफ, ये जो एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की, और उसके बाद एक्टिविटीज के बाद हमने ग्रुप्स बनाए एलोकेटेड टू डिफरेंट मेंबर्स, ये वाले। समझ में आ गया सबको? तो 2 कॉन्सेप्ट्स आर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और दोनों के आपको लाइनें कोड करके आना। कोई डाउट तो नहीं है? कॉन्सेप्ट वर्ड से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, बस यही है। हाँ चलो, अब आइए देखो बच्चों, अगेन डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, तो डेलीगेशन का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में डी लिख लो, बाद में आएंगे फिर से इस पे। समीर गुप्ता started a telecommunication company Donera Limited to manufacture economical mobile phones for the Indian rural market with 15 employees. The company did very well in its initial year as the product was good and marketed well. The demand of the product went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Sameer Gupta, who was underline career, who was earlier taking all the decisions for the company, had to selectively disperse the authority. He believed that subordinates are competent, capable, and resourceful and can assume responsibility for the effective implementation of their decisions. This paid off, and company was not only able to increase its production but also expand its image. Identify the concept. अब सुनना, पहले सुनना बेटा। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या था, एक टास्क था मैनेजर के पास जो वो नहीं कर पा रहा था, और उसके बाद उस काम के लिए उसने नीचे लोगों को अथॉरिटी दी। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं, तो इसको अपने माइंड में रीड करते तो क्या हो रहा है, एक बंदा है जिसकी एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, धीरे धीरे उसका इस बिजनेस बढ़ा, और धीरे धीरे उसको ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहा था, ऐसे रियलाइज हुआ उसको, कोई पर्टिकुलर चीज दिन नहीं रियलाइज हुआ, ऐसे रियलाइज हुआ कि यार मैं सारे डिसीजन जो खुद ले रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा, मुझे अपने से नीचे लोगों को डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी देनी पड़ेगी। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये पर्टिकुलरली एक टास्क के बारे में हो रहा है या जनरली हो रहा है? जनरली हो रहा है।
जनरल डिसीजन है, कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं लिखा ना कि एक टास्क है, समीर गुप्ता ना बाहर जा रहा था और उसको देखना था, साइट्स देखनी थी जहां वो टावर लगवाएगा, वो बाहर गया और उसको लगा कि मैं इतने सारा एरिया कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपने से नीचे जूनियर को बुला के उसने बोला कि चलो नॉर्थ दिल्ली तुम कवर करो, साउथ दिल्ली मैं कवर करता हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, एक टास्क की तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही बैठा हुआ था वो, उसको लगा यार मेरे को अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अपने से जूनियर्स को भी पावर देनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग की। अब मुझे बताइए ये क्या कॉन्सेप्ट? Decentralization. अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना? अब आपको ये देखना है क्या वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है या वो जनरल है। आप इस चीज को लो जागृत, अब आपकी शायद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये पॉइंट ज्यादा अच्छा है। आप ये देखो कि क्या एक पर्टिकुलर टास्क के बारे में हो रहा है या जनरली हो रहा है। ये जनरल था इसलिए इसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, चलो एडवांटेजेस आप कोई भी लिख दोगे। इसका सेकंड पार्ट है 100% सेम है, और मतलब बस वो चेंज क्या कर दिया, कंपनी चेंज कर दी, नाम बदल दिया है। वो एक ही साल के अलग अलग सेट के क्वेश्चन है। मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ। सीधा ये फोर्थ लाइन में, नीरज गुप्ता हु वाज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजंस हैज टू डिस्पर्स, बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो इसका आंसर भी सेम है, डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल सेम है, बस सेट अलग थे। ओके, अब आजिए नेक्स्ट, अगेन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसमें भी डी मार्क करिए। National Gritech Limited has grown in size. It was a market leader, but was with changes in business environment and with the entry of MNCs, its market share started declining. To cope up with the situation, the CEO starts delegating some of the work authority to the general manager, who also felt himself burdened, and with the approval of CEO, disperses some of the authority to the lower levels. अब एक बार अगेन देखते हैं वो क्या है। एक कंपनी है नेशनल ग्रिटेक, मार्केट लीडर है, एमएनसीज आ गई है, तो उससे उसका शेयर डिक्लाइन हो रहा है। तो सीईओ को ऐसे ही लग रहा है, मतलब बैठे बैठे कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो वो ओवरबर्डन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा टाइम पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जनरल मैनेजर को देनी पड़ेगी। मेरा सवाल आपसे अगेन, क्या ये पर्टिकुलरली एक टास्क के बारे में है? जनरली हो रहा है ना कि मैं ओवरबर्डन हो रहा हूँ और इन एमएनसीज के साथ अगर कोप अप करना है तो टाइमली डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए जनरल मैनेजर को देनी पड़ेगी। और फिर और हिंट दे दिया आपको, और हिंट क्या मिल गया कि जनरल मैनेजर कह रहा है कि सर मैं को भी ओवरबर्डन हो रहा हूँ तो मैं भी और नीचे दे देता हूँ। तो एक तरीके से इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एक और हिंट मिल गया। और जनरली वो तो पता चल ही रहा है कि जनरल बेसिस पे हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं हो रहा। तो दोनों हिंट्स कहाँ पे हमारे को आइडेंटिफाई इंडिकेट करे, डी से। समझ में आ गया चाकलेट? निश्चित क्लियर है ब्रोन? ओके, तो सही हो गया हमारा को, काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका आंसर भी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, शारदा लिमिटेड। बेटा इसको भी मार्क करिए, ओएस, ओएस मार्क कर। शारदा लिमिटेड परसुइंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो मेरे को बताइए, पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन करिए, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब मुझे बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसके लिए? फंक्शनल। कैसे पता चला? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर की तीन सूटेबिलिटी थी, याद करिए सूटेबिलिटी थी तीन। क्या था? ग्रोथ इन साइज, डिफरेंट फंक्शंस एंड फंक्शंस रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो वो जो सूटेबिलिटी की एक लाइन थी सिर्फ, मतलब तीन लाइनें थी सिर्फ, वो देखो एक क्वेश्चन में आ गई। ओके, आगे चलते हैं। 11th, Ishita works as a corporate event coordinator in an event management company. She has been made an overall official in charge for organizing painting competition exhibition for one of the clients of the company. अच्छा बच्चों, आज ना क्लास के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास है एक तरीके से, प्लीज लीव मत करना। मुझे दो तीन चीजें आपको बतानी है, अगर लीव हो भी जाए प्लीज रीजॉइन अगर इसके बाद। तो एक तो मेरे को आपके आगे की क्लासेस का भी बताना है, और भी एक दो बातें आप लोगों से इंपॉर्टेंट बातें करनी। For ensuring that the exhibition takes place successfully, she identifies the various activities involved and divides the work into various committees, decoration, etc. ठीक है। Each member is then in the group is asked to report their respective supervisors, etc. Functional management तो दिख रहा है, organizing है, पता ही चल रहा है। मेरे को स्टेप्स बताने, तो ड्रोन आप बताओगे, आप लाइन कोड करके मेरे को स्टेप्स बताओ, अगर जितने आते हैं आपको, ट्राई करो। सर जो लाइन है, she identifies the various activities. वेरी गुड, पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन। चलो आगे। The departmentalization है in order to facilitate coordination within the. हाँ नहीं, ये नहीं हुआ, ये तो असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज हुआ। शी अपॉइंट सुपरवाइजर, तो हाँ सॉरी सर, ये तो असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज हुआ, ठीक है। आगे और कोई? Each member in the group is to report to their respective. हाँ, ये हो गया रिपोर्टिंग, ठीक है। तो बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें ना एक्चुअली में अगर देखा जाए तो क्लियर इंडिकेशन तीन स्टेप्स की है।
फर्स्ट 3 and 4. आई रिपीट हाउ. फर्स्ट ठीक है, पहले लाइन ये वाली वेरियस एक्टिविटीज, सेकंड लाइन आपकी ये वाली अपॉइंट द सुपरवाइजर वाली असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स, ये होगी रिपोर्टिंग. तो वैसे तो क्लियर इंडिकेशन तो 3 की है, लेकिन हमें ये भी पता है कि सर स्टेप्स तो कभी ऐसे हो नहीं सकते कि एक हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया. इसका मतलब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है. तो अगर आप लाइन कोड कर रहे हो तो इसी लाइन को, पहली लाइन को ही कोड कर देंगे. शी आइडेंटिफाइज द वेरियस एक्टिविटीज एंड डिवाइड्स द वर्क इनटू वेरियस टास्क. इसी लाइन को कोड कर देंगे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि एक हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया. स्टेप्स कभी ऐसे नहीं हो सकते. क्लियर इंडिकेशन हमारी है फर्स्ट 3 और 4 के लिए, सेकंड के लिए नहीं है. और दूसरी बात, इन्होंने कोड करने को बोली भी नहीं थी लाइन को, वो तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है हमेशा करनी है. तो आप सेकंड वाला स्टेप भी लिख के आओगे और लाइन भी कोड करके आओगे, पहली वाली ही कोड कर. समझ में आ गई? या पहली वाली एक साथ लिख के, जो आप लिखते हो ना टेबल में आगे, पहली वाली लाइन पूरी एक बार लिख के आगे लिख दो, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइड. समझ में आ गया? ओके. After completing a course in travel and tourism, Karan starts his own travel agency. In order to ensure smooth function of his business, he decided to create a 14 job positions divided into 4 departments on the basis of functions, namely front office department, including online queries, reservation department, railways and roadways, accommodation booking, etc. In order to avoid any interdepartmental conflict, he decides to specify clearly the lines of authority and areas of responsibility. तो विच फंक्शन दिख ही रहा है, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी बातें स्टेप्स की हो रही है. फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय करण इन विच ऑल द मैनेजरियल, इस लाइन को, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इन विच ऑल द मैनेजरियल, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑपरेटिंग एंड टास्क का परफॉर्म. तो अनन्या आप बताइए, आप बताइए. ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके, सिया आप बताओ. तो मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, तो पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी उसमें डिविजनल फंक्शनल में. एग्जैक्टली, मेरा वही मेरा पॉइंट था. यहाँ पे बहुत बच्चे फंक्शनल डिविजनल ढूंढने लग जाते हैं, बहुत बच्चे. लेकिन इसका आंसर वो नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सही, अनन्या एंड सिया दोनों ने सही बताया. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर साफ हिंट मिल रहा है, क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है, within which all managerial and operating tasks are. So that is the definition of organization. समझ में आ गया? Name the, अब देखिए, नेम द टाइप ऑफ फ्रेमवर्क. तो अब बताइए कौन सा फ्रेमवर्क है, फंक्शनल या डिविजनल? कौन सा डिविजनल, किसने बोला है? नहीं, फंक्शनल, क्योंकि एक ही तरीके का काम हो रहा है, दिख रहा है, फंक्शनल. और कोई भी आपको इसके एडवांटेज बता रहा है. ठीक है, ओके. अब आइए 13 पे. किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना? As the head boy and head girl of Prakashya Public School, Deepak Chugh and Deepika Chawla have been given the responsibility of hosting the Teachers' Day program in the school. In order to conduct the program in a systematic way, Deepak and Deepika first called the meeting of the council. In the evening meeting, they decided about the content of the program after taking into consideration the different available sources. इस line को underline करिए. Content of the program after taking into consideration the different available alternatives and choosing the best. Then the various tasks required to be performed were identified and divided into different in accordance with the predetermined schedule. After they were grouped, ठीक है, instrument etc etc, then each group was placed under, ठीक है, and then these council members were in turn informed whom to take orders from. Okay, बताइए functions कौन से है, बताइए. ऑर्गेनाइजिंग तो दिख ही रहा है, ऑर्गेनाइजिंग तो साफ दिख रहा है. प्लानिंग दिख रहा है कौन सी लाइन से, कि different available alternatives वाली जो लाइन है, फोर्थ लाइन, they take into consideration the different available alternatives. समझ में आ गया? और फंक्शंस लिखे हैं तो आपको एक पे तो छोड़ना ही नहीं है. अगर आप फंक्शंस पढ़ के भी एक पे छोड़ देते हो तो दैट मींस आप ब्लंडर कर रहे हो. ब्लंडर मिनिमम 2 तो होएगा. ठीक है, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और 2 ही होते हैं मेनली. और इंपॉर्टेंस बनानी थी, प्लानिंग की 2 इंपॉर्टेंस, कोई भी 2, एंड ऑर्गेनाइजिंग की कोई भी 2 इंपॉर्टेंस. ठीक है, ओके. अब आइए अगेन ओएस लिख लो 14 पे, ये इंपॉर्टेंट है, ओएस लिख लो. Extasic Limited is a well-known company dealing in office furniture. Underline करिए office furniture. Over the years, the business of the company has grown manifold. It now plans to expand its business and venture into home furniture. Underline करिए home furniture. At present, the company is following functional structure. Does the company need to modify? पहले तो मेरे को ये बताइए, होम फर्नीचर एंड ऑफिस फर्नीचर में क्या कोई फर्क होता है? मतलब रिसोर्सेज में, रॉ मटेरियल में, मशीन्स में. डिजाइनिंग अलग है, लेकिन कोई और फर्क है? वुड एंड स्टील से ही ऑफिस का फर्नीचर बनता है, वुड एंड स्टील से ही घर का फर्नीचर बनता है, बस डिजाइनिंग अलग हो जाती है थोड़ी. तो क्या आपके हिसाब से मतलब आर दे रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम फंक्शनल टू डिविजनल? नो. तो इसका आंसर मैं, आप लोगों ने सही बताया, बट मैं एक अच्छा आंसर फ्रेम करा हुआ है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखिए.
No, the company need not modify its organizational structure. No, the company need not modify its organizational structure, keeping in view keeping in view its expansion plans because even after expansion, the requirement of business in terms of raw materials, machines and equipments, the requirements of business in terms of raw materials, machines and equipments, equipments required, raw material, machines and equipments required remains the same. तो चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, वो सब सेम रहेगा, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगेन ओएस का क्वेश्चन है, तो मैं इस रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। Sprightly Limited is a reputed company offering various kinds of energy drinks. The company now plans to launch new range of sportswear. मतलब अभी ड्रिंक्स बना रहे थे, अब कपड़े बना रहे हैं। At present, the company is following functional. Does the company need to change? बताइए। अभी बना रहे थे ड्रिंक्स, अब बना रहे हैं कपड़े, तो do you think they need to? Yes. तो आप इसका आंसर मैं एक सिंगल लाइन लिखवा रहा हूँ, पूरा आंसर वही कॉपी कर दोगे जो पहले वाला था, बस आप उधर चेंज आप लिख दोगे does not remain the same। तो पहली लाइन है yes the company needs to modify, और फिर सारा वही लिख दोगे बिकॉज मतलब उनके जो रॉ मटेरियल्स है वो सब चेंज पहले वाला, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। ओके, तो अब आइए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉइज इन एलिगेंस प्राइवेट लिमिटेड इंपॉर्टेंट मार्क करिए। फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 5 डिपार्टमेंट्स, नेमली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग एक्सेट्रा। ओवर द इयर्स द कंपनी हैज ग्रोन एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन मैनीफोल्ड्स। द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू डाइवर्सिफाई इनटू लेदर बैग्स। अब देखिए, पहले वो बना रही थी फुटवेयर, अब आ रही है वो लेदर बैग्स। सो इट्स मैनेजमेंट नाउ डिसाइड टू रीस्ट्रक्चर इट्स ऑपरेशन। दे प्लान टू क्रिएट separate product divisions, underline करिए पूरी लाइन को, separate product divisions for each product line, wherein the functioning of each division will be further divided into 5 departments, namely production, purchase, etc. How is the company's future organizational structure likely to be different from existing one? State 3 points of difference। एक मिनट रुक जाओ, अगर ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन नहीं होती ना सेपरेट प्रोडक्ट डिविजन्स वाली, तो शायद मैं आपको बोलता कि मतलब मैं ये बोलता कि इनको चेंज ही नहीं करना, फंक्शनल स्ट्रक्चर ही रखना है। पहले वो लेदर बैग्स बना रहे थे, अब लेदर वो बना पहले फुटवेयर बना रहे थे लेदर से, अब लेदर बैग्स बना रहे, तो दोनों में लेदर ही है, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली लिख लिया कि कंपनी डिस्वांट की वो अलग अलग प्रोडक्ट डिविजन्स बनाए और हर प्रोडक्ट को अलग से नीचे मल्टी फंक्शनल बनाए। तो ये तो किस तरफ हिंट दे रहे हैं, ये किस तरफ हिंट दे रहे हैं बताइए? डिविजनल सर। तो हम क्या लिखेंगे at present? अब इसका आंसर मैं थोड़ा सा एक दो लाइनें लिखवा रहा हूँ, वो लिखिए। At present, the company is following the functional structure However, with the expansion plan in mind, the company intends to follow divisional structure। ठीक है, तो उसके बाद आप दोनों के बीच में डिफरेंस, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रल फंक्शनल एंड डिविजनल के बीच में डिफरेंस लिखने हैं आपको। कितने 3 पॉइंट्स, समझ में आ गया? तो अगर ये लाइन नहीं होती तो मैं तो आपको चेंज ही नहीं कराता, मैं तो फंक्शनल ही रखता, क्योंकि लेदर ही है, बैग्स बना रहे थे पहले फुटवेयर बनाए थे, बैग्स। ओके, 17 पे आ जाओ, डी है, डेलीगेशन वाले क्वेश्चन है। आइए, Smriti works as a marketing manager of a small company. The company has recently launched a new brand of room fresheners through aggressive promotion. However, the product is less in demand and its sales are low. Smriti decides to study the reasons for the poor likability of the product. ठीक है,
अभी तक कोई बात नहीं हुई. Keeping in view the volume of work, she knows it will be impractical for herself to handle it all by herself. In order to share her work, she deploys a team of executive. Team of executive को underline करिए. Team of executive. She gives them the necessary authority and assigns them the responsibility to conduct research and report back to her. Again हिंदी में क्वेश्चन को समझते हैं. ये स्मृति है, उसकी कंपनी है, चल रहा था, वो उसकी कंपनी के प्रोडक्ट डिमांड में नहीं है, तो उसको एक काम, मतलब वो काम करती है कि वो बाहर जाके फीडबैक ले रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो उसने काफी सारी तरीकों से वो ये पता लगाने की कोशिश करी है कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट डिमांड में क्यों नहीं है. उसको लगा कि इतना बड़ा काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, तो उसने अपनी टीम बना दी है और उसको बोला है कि आप लोग इस काम को करो, कुछ एरिया आप करो, कुछ एरिया आप करो, और जो डिसीजंस आपको उस दौरान चाहिए लेने हो वो आप ले सकते हो, और उसके बाद आप मुझे रिपोर्ट करोगे. अगेन मेरा सवाल आपसे, ये एक पर्टिकुलर टास्क के बारे में हो रहा है या जनरली हो रहा है? पर्टिकुलर टास्क. और इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, हाँ जी सर. तब भी ये डेलीगेशन होएगा. तो समझ आ गया जागृत? तब तो कोई डाउट नहीं है ना, ये डेलीगेशन. ठीक है, तो मेरे को लग रहा है, आज मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मैंने भी आपको जो है कि एक तरीका बताया आइडेंटिफिकेशन का, वो उससे सारे क्वेश्चन ठीक रहेंगे. वो अभी निकला है, बता मतलब क्वेश्चंस के बीच में से ही निकला. अब इस चीज को पकड़ो, टास्क वाली बात को पकड़ो. ठीक है, ओके. तो ठीक है, उसके बाद हमने, हाँ बस ठीक है, और उसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना, डिफाइन कर देना डेलीगेशन को, और एक दो लाइनें और लिख देना डेलीगेशन के बारे में, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने लिखी भी अपने नोट्स. 18 पे आइए. श्रीजन इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, मैं इसका आंसर भी लिखवाऊंगा आपको. Srijan is working as a sales manager in publishing house. In order to promote the new series of encyclopedia, the company decides to undertake door-to-door selling in the city. As the sales manager, Srijan is given the target of selling 5,000 units in a month. उसको एक महीने में 5,000 बुक्स बेचनी है. He appoints a team of 5 salesmen for the purpose. Each salesman is given the target of selling 1,000 units. At the end of the month, only 48 units are sold, as Bobby, one of the salesmen, falls ill during the last week and it's able to sell only 800 units. Will Srijan be accountable for the performance of the assigned task to Bobby? Why or why not? Give reasons for your answer. पहले तो आप मेरे को ना, जो मैं जिससे पूछा वो आंसर दे दो, मैं इस पर फ्रेम करके आपको आंसर बताऊंगा. तो जागृत बताओ, will he be responsible? Yes or no, and why? Yes sir. Yes. Why? Because accountability एक exactly. क्योंकि accountability जो है वो हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. आप फाइनल आउटकम के लिए हमेशा जो फर्स्ट मैनेजर है, जो मेन मैनेजर है, जिसका टास्क था, वो अकाउंटेबल रहे. तो मेरे ख्याल से सबको आंसर पता था, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, पता था तो बहुत अच्छी बात है. अब हम इसको अच्छे से मैं लिखवाता हूँ, आप लिखिए, कम लिखना शुरू करिए. यस, Srijan will still be accountable. Yes, Srijan will still be accountable for, थोड़ा बड़ा है तो छोटा छोटा लिखना, for the performance of the assigned task to Bobby. For the performance of the assigned task to Bobby, because only the responsibility for work can be delegated. Only the responsibility for the work assigned can be delegated. Full stop. The ultimate responsibility of a superior is, the ultimate responsibility of a superior is ये ना कैपिटल में लिखना, थोड़ा आपको याद हो जाएगा. एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड. इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड. मतलब जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फाइनल अकाउंटेबिलिटी उसकी ही है. एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज, उसी की. full stop. Thus irrespective of the extent of delegated authority, irrespective of the extent of delegated authority, एक मिनट जागृत, the manager shall still be accountable the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation. To the same extent as before delegation. जी जागृत, क्या पूछ रहे हैं?
सर यहाँ पे आपको ये नहीं लिखवाना था कि अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क? क्या क्या मैंने समझा नहीं। सर अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क शुड बी एब्सोल्यूट ना? तो मैंने ये अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी, हाँ ऐसा कर, हाँ अकाउंटेबिलिटी कर दो, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर इज एब्सोल्यूट, ऐसे कर, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी कर, ठीक है। चलिए अब आइए 19th पे, अगेन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का एक बार डी मार्क कर लीजिए। राकेश ज्वाइंस एज अ हेड लाइब्रेरियन ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेडिकल कॉलेज। A team of 4 librarians were placed under him. Besides, he has been assigned 8 tasks. He has been assigned 8 people as support service staff. On the second day of joining, he was told to get a shipment of new books unloaded, stock the bookshelves, and then get all the waste disposed of within a week's time. In order to ensure orderliness and speed in the processing, he makes each of the 4 librarians in charge of 5 different subjects. Keeping in mind their Keeping in mind their competence and experience, he decides to give them more authority so that they can make autonomous plans and assume the responsibility for effective implementation of their decisions. Identify and explain the concept used by Rakesh. मेरी बात को समझना, हालांकि इसमें एक टास्क की बात ही हो रही है कि उसको एक काम मिला है कि एक कंसाइनमेंट आया है बुक्स का, उसको आपको निकालना, मतलब अनलोड करना है, उसके बाद उसको स्टॉक करना है, और जो भी उसकी कार्टेज और पैकिंग होगी उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो हालांकि काम एक है, और वो अपने 5 लाइब्रेरियन से उसको करवाता, और अगर लास्ट लाइन नहीं होती कीपिंग इन माइंड से लेके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन तक, तो मेरा आंसर डेलीगेशन ही होता। लेकिन अब इसको देखो, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक लाइन लिख दी है, कीपिंग इन माइंड देयर कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सपीरियंस, he decides to give them more authority so that they can make autonomous plans and assume the responsibility for the effective implication of their decisions. एक बात बताओ, अगर डेलीगेशन होता तो फाइनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राकेश की ही रहती, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या लिख दिया है कि वो उनको डिसीजन मेकिंग की पावर दे रहा है, जिससे कि वो अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो अब मेरे को बताइए, इस अब आपके हिसाब से कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं? समझ में आया? जाकर कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? टास्क एक ही है और आंसर डेलीगेशन ही होता। अगर ये लास्ट लाइन, अगर ये बस यहां तक होता, इन चार्ज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स तक होता, तो इसका आंसर डेलीगेशन ही होता। लेकिन इसमें लिख दिया है कि ये उसको सिखाना चाहता है काम, प्लस वो चाहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी काम की, तो ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। निश्चित क्लियर है? हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में ना कि ये सर आपने तो अभी तक कॉन्सेप्ट की बात की, एक हाँ तो एक ही टास्क की बात है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से भी तो देखेंगे ना। चल, तो इसका आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। आगे चलते हैं। एडवांटेज कोई भी 3, ठीक है ना। तो जो लास्ट की 2 लाइनें थी उसके नीचे लिख लीजिए हिंट लिख लीजिए। ओके, होम क्रिएशंस इज अ वेल नोन चेन ऑफ department store offering various types of products under one roof. The company owns 50 stores in various parts. Each store is placed under the charge of an individual. The manager who is allowed, ये underline करिए, who is allowed to run their stores autonomously by deciding about the products, which may be promoted, appointment of staff, etc. As the managers have a deeper knowledge of the local situation, enable them to take decisions even. This approach helps to improve customer satisfaction, etc. देखो बताइए कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रखी है कंपनी? डिसेंट्रलाइजेशन। ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग है, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, किसी को रिपोर्ट मत करिए, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी के मन में कोई और डाउट तो नहीं है? किसी के मन में कोई और आंसर हो? चलिए आगे चलते हैं। 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस आप कोई भी 3 दे सकते थे बेटा। सी पार्ट कट कर दीजिए, वैल्यूज अब आपके क्वेश्चन कोर्स में से कट गई है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो गलती से टाइप है। 21 पे आइए। द कबीर ओपन्स अ रिटेल मार्ट। मैं 2 ही क्वेश्चन है, प्लीज मैं जैसे आपको कह रहा हूं लीव मत करिएगा। In the local market, as he knows it will be impossible for him to handle all the work by himself, he appoints Jasraj to perform task on his behalf. Underline करिए, task on his behalf, thereby reducing his workload. This decision provides Kabir with more time to concentrate on important. Again, this line को underline करिए. Besides, he recruits 8 other people as a support staff. Over the years, his business earns a good name, so he opens another outlet. Considering Jasraj's competence, he gives independent charge of the new outlet to him. Underline करिए, independent charge, thereby enabling him, empowering him by giving him more autonomy in the functioning of the outlet.
identify the two concepts which reflect the transition in the role of Jasraj. तो जागृत आप ट्राई करो और मेरे को लाइन भी बताना अगर आपको आती है, ट्राई करो। सर मुझे समझ नहीं आया नहीं यार, मैं समझाता हूँ पहले हिंदी में। हुआ क्या, कबीर एक रेस्टोरेंट चला रहा है, ठीक है, रिटेल मार्ट चला रहा है, और वो सारे डिसीजन खुद ले रहा है। तो अपने काम को आसान करने के लिए उसने जसराज को रख लिया, ठीक है, जसराज को उसने कुछ डिसीजन मेकिंग की पावर दी है। इससे कबीर को ज्यादा टाइम मिल जाता है, और उसके फिर जैसे जैसे एक मिनट राघव, फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उसने 1-2 आउटलेट्स और खोले, और उसको लगा कि जसराज इतना कॉम्पिटेंट हो चुका है कि जसराज को अब दूसरा आउटलेट दे दिया जाए, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग ले सकता है। तो राघव आप बताइए क्या पूछ रहे थे? सर एक क्वेश्चन में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एग्जैक्टली। तो इसमें हुआ क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले जब उसी स्टोर में जसराज को थोड़ा सा काम दिया गया था तो वो डेलीगेशन था, ठीक है, अपना काम आसान करने के लिए डेलीगेशन दिया। फिर धीरे धीरे जब उसने एक्सपेंशन के बारे में सोचा तो उसने जसराज को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की कंप्लीट पावर दे दी, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे कि अर्लियर, ये वाला पैराग्राफ मार्क करके, ही अपॉइंट्स जसराज टू परफॉर्म टास्क हियर, जसराज हियर द कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट इज डेलीगेशन, एंड लास्ट वाली लाइन मार्क करके जसराज कॉम्पिटेंस वाली जो लाइन है वो मार्क करके डिसेंट्रलाइजेशन। बताइए समझ में आ गया, क्लियर है? और उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बी का आंसर मैं लिखवा रहा हूं आपको, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट करण मस्ट कीप while giving the independent charge to जसराज। तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो जसराज को काम दे रहा है? तो इसका आंसर लिखिए, करण needs to be careful while selecting those decisions related to the outlet which will be taken by Jasraj independently, and those that will be retained by him, मतलब वो जसराज को क्या कह रहा है कि आप ये डिसीजंस आप ले लीजिए, मुझसे मत पूछिएगा, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग तो अपने पास भी रखेगा ना, ठीक है। It is important to define the decision making powers as complete decentralization would mean the delegation of all the decision making functions to Jasraj. As complete decentralization would mean the delegation of all the decision making powers to Jasraj, which would obviate, मेरे नोट्स में भी लिखा है ये वर्ड obviate मतलब eliminate, which would eliminate या obviate the role of Karan as the owner of business। अगर सारे ही डिसीजन मेकिंग पावर जसराज को दे दी तो वही करण क्या करेगा, एज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो उसको ये करना पड़ेगा कि जसराज को जब वो इंडिपेंडेंट चार्ज दे तो उसको बोले कि आपको क्या सामान लाना है, कहाँ से लेके आना है, कितना क्रेडिट देना है, किस को रिक्रूट करना है, ये सारे डिसीजन आप लो, लेकिन क्या प्राइस होना चाहिए, क्या मतलब और जो भी डिसीजन होते हैं स्टोर कुछ लाने के लिए वो मैं लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसकी पावर्स को डिफाइन कर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Karan and Arjun are first cousins. After completing a course in journalism, both of them join a leading newspaper company as sub-editors. Over the years, due to their consistent hard work, they are promoted to the post of chief editors in different divisions. However, the way of their function is totally different. Karan leaves his line career in the capabilities of the subordinates and therefore follows the philosophy of selective dispersal of authority throughout all the levels in his division. On the other hand, Arjun prefers to function through strict controls and retains all the decision-making authority with himself. In context of the above case, how do Karan and Arjun differ? तो मेरे को बताइए करण की क्या पॉलिसी है? करण की डिसेंट्रलाइजेशन, करण की डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, और अर्जुन की सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है एक्सप्लेन। तो मैं इसका आंसर डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, लिखिए। अच्छा है, आपने सही बताया है।
चलिए ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये लिखना है करण का कि ही फॉलोज फिलॉसफी ऑफ सिलेक्टिव डिस्पर्सल एंड अर्जुन रिटेन्स ऑल द पावर्स बाय हिम्स। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखिए एक बार हम जरा उन क्वेश्चन पे फिर से आते हैं जो डेडिकेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाले थे, ऊपर से सिर्फ ऊपर से। तो जैसे पहला पेज पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आप देख ही रहे हो कि एक टास्क के लिए हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, इसलिए वो डेलीगेशन है। ठीक है, एक टास्क के लिए है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में जो हमारा अमन चड्डा वाला था, जो बुलसाई वाला वो था, ईशान एंड वृंदा वाला, उसमें भी देखिए एक काम के लिए उन्होंने उस दो लोगों को अपॉइंट किया, एक से ज्यादा लोग हैं लेकिन काम एक पर्टिकुलर टास्क है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारा जो ये क्वेश्चन है समीर गुप्ता वाला, इसमें कहीं पे भी एक पर्टिकुलर टास्क की बात नहीं हो रही। वो कह रहा है कि बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सारे डिसीजन अब खुद नहीं लेने चाहिए, मेरे को इसको लेने चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट को लेने चाहिए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ 9th क्वेश्चन में, अगेन इसमें तो लिखा हुआ है सिलेक्टिवली डिस्पर्सेस द वेरियस लेवल्स, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आइए सीधा, हाँ स्मृति वाला, इसमें अगेन वो क्या है, एक टीम बनाती है लेकिन एक काम को पूरा करने के लिए बनाती है, तो अगेन डेलीगेशन होएगा। ठीक है, उस पर 19 क्वेश्चन, एक स्मृति वाला 17 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में हमने पूरा बताया कि डेलीगेशन ही होना चाहिए था, लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि उस पर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, सिर्फ उस लाइन की वजह से वो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको पता ही है, जब तक रिसोर्सेज सेम हो फंक्शनल, जब रिसोर्सेज चेंज हो जाए तो डिवीजन। अब बच्चों मेरी एक बात सुनना, मैं कुछ आंसर्स के बारे में, आंसर कीज के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो बच्चों, हमने 12 के 12 क्वेश्चन चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लिए और मैंने 12 के 12 असाइनमेंट्स ग्रुप पे सेंड कर रखे हैं, लेकिन तब भी आप लोगों को थोड़ा सा और फायदा देने के लिए, थोड़ा सा और फायदा देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आज या कल 12 के 12 एमसीक्यूज के असाइनमेंट फिर से आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। इनमें टोटल 550 क्वेश्चंस और मैं इनकी आंसर कीज भी सेंड कर दूंगा विद आंसर। तो अगर किसी का कुछ भी रह गया है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमने 12 के 12 चैप्टर्स के हमने केस स्टडीज आज फिनिश कर दिए। इनको टोटल मिला के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इनमें टोटल मिला के 300 क्वेश्चन से ज्यादा है, मतलब अराउंड 300 क्वेश्चन है। इनकी आंसर कीज भी, इसकी जो सजेस्टेड आंसर है, मैं आंसर कीज नहीं बोल रहा, मैं सजेस्टेड आंसर्स बोल रहा हूँ, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास है आज ही ग्रुप पे। बट मैं अगेन आपको कह रहा हूँ सजेस्टेड है, कुछ आंसर्स उसमें हो सकते हैं गलत भी हो, तो प्रेफरेबली आप जो क्लास में किए उसी को फोकस करना। कुछ मिस हो गया हो आपका तभी उनको आंसर की इसको देख लेना, लेकिन हाँ आपके पास एक होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए हो सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, अब क्लासेस कैसे रहेगी सर। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर देखो अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लासेस पेपर होएगी या नहीं होएगी, तो प्लीज पढ़ना मत छोड़ो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप रोज पढ़ो, लेकिन कुछ आधा आधा घंटा, एक घंटा निकालो और पढ़ो। और अगर पेपर होते हैं तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि बहुत अच्छे से हम दे पाए। तो उसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमारा बचा क्या है, अब हमारा बचा है और सारे पेपर्स जो हमारे 5 फुल कोर्स के टेस्ट हुए उनकी डिस्कशन बची। तो ठीक है, अभी रुक के हम ऐसा करेंगे, इस वीक एक क्लास और अगले वीक एक क्लास में हम दो पेपर्स, क्योंकि एक पेपर को करने में आधा घंटा लगेगा, दो पेपर्स की डिस्कशन। उससे हमारी एक बार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी होती रहेगी। और अगर ये न्यूज आ जाती है ऑफिशियली कि पेपर नहीं होएंगे, तो उसके बाद आप एंजॉय करना, मैं भी आपको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन जब तक वो न्यूज नहीं आ रही, अभी रुक जा ड्रोन, जब तक वो न्यूज नहीं आ रही, अभी से तो मदोश हो रहे हैं, तो आप प्लीज पढ़। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, हमारे मेरी तरफ से सारा कोर्स हो चुका है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ प्लीज ये जो हमारे केस स्टडीज ये हुए हैं इसको प्लीज आप संभाल के रखिए, और इसका अगर हो सके तो प्रिंट आउट निकाल के उसको स्पाइरल करा लीजिए। अब आ जाओ रिविजनरी। तो जो हमारी 2 चैप्टर चल रहे थे, देखो अगर हमारे पेपर्स की आ जाती है इन्फॉर्मेशन की पेपर्स होएंगे, अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है पेपर्स होएंगे और लॉकडाउन खुल जाता है तो क्लासेस हमारी इंस्टीट्यूट में होंगी। लॉकडाउन नहीं खुलता तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा और धीरे धीरे कराऊंगा, तो बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 2 चैप्टर चल रहे थे प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो अगर ऑनलाइन ही लेनी पड़ी तो ऑनलाइन ही लूंगा, लेकिन और धीरे धीरे करेंगे जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी, ये भी बात हो गई। उसके अलावा अगर आप लोग पढ़ रहे हो और कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप चाहते हो कि सर इस चीज की मेरे को क्लास दे दीजिए, तो आप मेरे से उसके बारे में बिल्कुल बेहिचक होकर पूछ सकते हैं।
ठीक है बच्चों। और मैं कोशिश करूंगा मैं इस मंथ में, अभी जैसे 10 दिन बचे हैं, मैं कुछ रिविजनरी वीडियोस और चैप्टर्स के बनाऊंगा, जैसे प्लानिंग कंट्रोलिंग के छोटे छोटे चैप्टर्स के, वही आधे घंटे के, तो वो बना के मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, आप भी उसको देख लीजिए। ऑल ओके बच्चों, इसके साथ ऑफिशियली आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कोर्स खत्म हो गया, ठीक है। ऑफिशियली बहुत अच्छे 12-13 महीने हमारे रहे, अप्रैल से मई हो गया, 13 महीने हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, आप लोग भी एंजॉय करिए। लेकिन बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन है, अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और एक मेरा लिए एक काम करिए, अपने जूनियर्स को प्लीज मेरा नाम रेकमेंड करिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग अपने स्कूल के सब वो फेसेस हो, नोन फेसेस हो, तो आप ही अपने जूनियर्स को प्लीज बोलिए, रेकमेंड करिए मेरा नाम भी, और अपना बताइए। मैं देखो गलत नहीं बोल रहा, आप लोगों को अच्छा ही लगा क्लासेस लेके, तो प्लीज ओके बच्चों। तो एंजॉय भी करिए, बट विद बाय टेकिंग प्रॉपर केयर, ठीक है। चलो आज की Thank you. क्लास की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, और धीरे ये सारा जो मैंने आपको मटेरियल बोला है वो आज शाम तक सारा ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको देखो। ओके चलिए फिर मिलते हैं मे बी फ्राइडे या नेक्स्ट मंडे एज फॉर द डिस्कशन ऑफ इट। ओके किसी को कुछ पूछना है? Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय। किसी को कुछ भी पूछना है थैंक यू बोलो। सर। ओके बेटा।